Okay, fine. So, yeah. Yes, Seema, a very warm good morning. Supriya, a very warm good morning. Good morning, sir. Good morning. Yes, so now let's begin for the part. Yes, so one by one, you can just ask me the queries and we will just try to resolve them. Yeah. So now the students are from different batches, okay? So they may have the different questions with their different levels of knowledge. So you can just ask your issue which you are just facing with, okay? One by one students will get joined. You can just ask the questions. Yes, so queries, questions, please. So you can just ask regarding any topic, HTML, CSS, JavaScript. Those who are currently learning as a React, they can ask React, Node.js, Express.js, MongoDB. Okay, you can just ask me any question. Yes, any query, any questions, please ask. So if you are having any non-technical question, that also you can ask, okay, don't worry. Sir, what is high level design and what is low level design? Okay, high level design and low level design. So prettily, I know the high level and low level languages, but the design patterns are, I'm not bit sure regarding that. So high level design and low level designs. Yes, any more doubt? So actually, yes, ma'am. What is responsive? Okay, yeah. So a pretty good question. What is a responsive? Okay. Basically, when we say a website is a responsive, it means that that website is compatible. Okay. That just I will start Paint. That website is compatible with different devices. Okay. The website is compatible with different devices. Now, exactly they are not. We can't say directly a device, but consider that we are having a desktop. Okay, we are having a desktop, like आपके पास desktop है, आपके पास laptop है, and you are having mobile phone also. Now what you want that कि आपकी जो website है वो desktop पे भी दिखनी चाहिए, आपकी जो website है वो laptop पे भी दिखनी चाहिए, and your website must be get view in a proper way on mobile devices also. सो लाइकवाइज जैसे जैसे ब्राउज़र की साइज चेंज होगी, जैसे जैसे ब्राउज़र की साइज चेंज होगी, वैसे वैसे आपकी जो वेबसाइट है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बनती जाएगी. ओके, so the best example is bootstrap website. You can just take a bootstrap website as a one of the remarkable or best way. Okay, so I will just use a bootstrap. Okay, just I will use bootstrap, and if I just try to change the size of bootstrap page, you will see that, see, I am just changing the size. I am not changing the device. मैं ब्राउज़र की साइज चेंज कर रहा हूँ. सो जैसे जैसे ब्राउज़र की साइज चेंज होगी, यू विल सी वन थिंग दैट कि ऑटोमेटिकली ये जो पर्टिकुलर आपका यूआई देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक मेनू था. ओके, सो टुवर्ड्स द एक्सट्रीमली राइट साइड एक क्विक सर्च या फिर क्विक मेनू था. यू विल सी दैट वो ऑटोमेटिकली हाइड हो गया, एंड आफ्टर अ सर्टन टाइम ऑल द मेनूज विल बी गेट हाइड. सी, द मेनूज आर गोइंग हाइड. सो आपके डिवाइस के मुताबिक आपका यूआई जब चेंज होता है उसे हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं. डिवाइस के मतलब ब्राउजर के मुताबिक. ओके, सो ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ व्यू पोर्ट. सो वी कैन से दैट कि जैसे जैसे साइज व्यू पोर्ट के हिसाब से बदलती जाएगी, उसे हम रिस्पॉन्सिव कोड कहेंगे, और वी कॉल्ड इट एज अ रिस्पॉन्सिव डिजाइन. ओके, yes, got the point? Yes, Seema. So that is the responsive one. Yes, sir. Okay, yes. So वेब डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट जस्ट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Yes, next question.
सर, जेव्हा आपण कंपनीमध्ये काम करतो तेव्हा कसं वर्क राहतं म्हणजे? ओके सो आई थिंक सो कि एक दूसरे बैच में मैंने क्लियर किया था, जस्ट आई विल क्लियर टू यू। ओके, बेसिकली क्या होता है, देखिए, आप जब किसी भी कंपनी में काम करते हैं, ओके, सो जब वेन एवर यू वर्क विद अ सर्टन कंपनी, कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ऐसा होता है कि आपकी एक टीम हो सकती है, ओके, लाइक यू आर वर्किंग इन एमएनसी, या फिर आप एक मिडिल स्किल कंपनी पे काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो होता क्या है, आपकी एक टीम होती है, ओके, सो आपकी टीम होती है और आपको काम डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, यू जस्ट गेट अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क। नाउ इट इन केस कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपका अगर प्रोजेक्ट नया है, ओके, इफ योर प्रोजेक्ट इज न्यू, देन एवरीथिंग इज बीन स्ट्रक्चर्ड एंड क्रिएटेड इन अ न्यू वे। अगर मान लेते कि आपके पास पुराना प्रोजेक्ट है, जैसे वी विल जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे कुछ दिन पहले जैसे कि वोडाफोन पेमेंट सिस्टम के एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट चल रही है, ओके, सो माय फ्रेंड इज इन वॉइस, दैट इज इन वोडाफोन कंपनी, सो ही इज करेंटली वर्किंग विथ पेमेंट गेटवे सिस्टम, ओके, सो जो पेमेंट गेटवे सिस्टम है, अभी वो पुराना ही उनका स्ट्रक्चर है और कोड है, लेकिन उनको उनमें एपीआई ऐड करने हैं, so that project is already created and they are just working on that particular model, the model is new, so जो भी स्ट्रक्चर, जो भी पैटर्न है, वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं, मतलब कैसे कोड करना है या फिर क्या डिज़ाइन रहेगी, कैसा यूआई रहेगा, ये हर एक टीम अलग अलग होती है। सो जब आप डेवलपमेंट करते हो बड़ी कंपनी में, तो आप सिर्फ डेवलपमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, आपको उसके आउटपुट जो रहेगा, आपको सिर्फ उसका क्लियरेंस करना है कि ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट रहेगा। बाकी इसका जो टेस्टिंग का काम है या फिर प्रोजेक्ट ऑनलाइन डिप्लॉय करना है, ये काम अलग अलग टीम करती है। जैसे कि डेवऑप्स की टीम होती है, जो हर बार क्या करती है, आपका प्रोजेक्ट जब भी प्रोडक्शन में आएगा, या फिर मान लेते कि स्टेज 1 में आपका प्रोजेक्ट आ गया, तो वो टेस्टिंग के डोमेन पे डाल देती है, ओके, सो द डेवऑप्स आर हैविंग they just use for the, or the DevOps developer are there for the deployment process। टेस्टिंग के लिए अलग टीम होती है, ओके, डेवलपमेंट के लिए अलग टीम होती है। अगर वही काम अगर आप छोटी कंपनी में करते हो, तो हम टेस्टर्स बेसिकली छोटे टीम में कंपनी में रहते नहीं है, बिकॉज एक टेस्टर को ऑफर करना या फिर उससे हैंडल करना, ओके, इट कॉस्ट द सिनेरियो, वो उसको ऑब्वियसली हम पेमेंट देते हैं। तो छोटी कंपनियां जो होती है वो सिर्फ डेवलपर्स को ज़्यादा करके हायर करती है, ओके, बट जो एमएनसीज होती है उनका एक स्ट्रक्चर होता है, तो हर एक कंपनी का एक हिरार्चिकल स्ट्रक्चर होता है। तो आपको क्या करना होता है, आपको जो भी वर्क है वो दिया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप जैसे एक कंपनी में ज्वाइन हो गई, लाइक XYZ कंपनी, एंड देन यू आर करंटली वर्किंग एज अ रिएक्ट डेवलपर या फिर वेब डेवलपर या फिर जावा डेवलपर। अभी ऐसा भी होता है कभी कभी कि जब आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको नए चैलेंजेस मिलते हैं, ओके, सो फॉर दैट दे प्रोवाइड योर ट्रेनर लर्नर। तो कंपनी में भी ट्रेनिंग्स होती है, जैसे यहाँ पे मैं आपकी ट्रेनिंग लेता हूँ, वैसे कंपनी में भी ऑफिशियल या फिर उनके कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं जो आपको नए नए टॉपिक सिखाते हैं, ओके। सो फॉर योर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट इट मे हैपन दैट कि आप एक प्रोजेक्ट छोड़ के दूसरा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे, तो एक ही डोमेन में हो सकता है या फिर वो अलग अलग डोमेन में भी हो सकता है, ओके, इट हैपन्स। So this is a normal process how the company or how a developers go through a company, okay? So it is not a critical, so don't worry। हमें सिर्फ एंट्री चाहिए होती है, और हमेशा याद रखिए, मैं हर एक सेशन में वही बोलता हूँ, हमें जॉब चाहिए। उस एक बार आपको जॉब मिल गया, उसके अंदर जाने के बाद आपके जो कोडिंग पैटर्न्स रहेंगे, आप जो कोड बनाएंगे, दे आर सिंपल प्लेन कोड, ओके, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं रहते। बिलीव मी, द डेवलपमेंट इज नॉट क्रिटिकल, ओके। सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आपको अगर कोई चैलेंज दी गई तो उसको आपको एक टाइम कंस्टेंट में पूरा करना होता है। अगर नहीं किया तो फिर आपके जो 6 मंथ के बाद जो इवेल्युएशन रहेगा या फिर आपका जो भी इवेल्युएशन चेकिंग प्रोसेस रहेगी, उसमें रेटिंग दी जाती है कि ये डेवलपर कितने लेवल तक है, इसे क्या बूस्टिंग चाहिए, इसे फिर आपको अगर आप अच्छे मार्क पे तो आपको ऑब्वियसली वो they just provide you some facilities or they just provide you some certification with that too, okay। अगर आपका वर्किंग प्रोसेस अगर डिग्रेड है तो वो आपको बोलते हैं कि प्लीज इस पर्टिकुलर पार्ट पे काम कीजिए। सो दिस हैपन्स, बट इंपॉर्टेंट है कि जॉब एक्वायर करना, ओके, और कंपनियां ऐसे ही काम करती है, नथिंग मोर देन दैट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो यू कैन आस्क टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ओके, टेक्निकल पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, नॉन टेक्निकल पूछेंगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, you can just ask।
या सो आवर सेशन इज गोइंग टू फ्रॉम 8 to 9. ओके, तो एक ही घंटे का सेशन है, आप पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन है. यस गाइस. यस, HTML के बारे में कोई क्वेश्चन है किसी के पास? CSS के बारे में कोई क्वेश्चन है? ऐसे नहीं क्वेश्चन रिगार्डिंग HTML, CSS. जिनका जावास्क्रिप्ट खत्म हुआ है उनको जावास्क्रिप्ट के बारे में कोई क्वेश्चन है? रिएक्ट के बारे में है कुछ क्वेश्चन? या यस. हेलो सर. यस शालिनी. सर मेरा क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में से था. जी बोलिए. सर कॉल बैक एंड कॉल बैक हेल्प क्या डिफरेंट होता है? ओके, सो चलिए इसको एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, कॉल बैक और कॉल बैक हेल्प क्या होता है. सो नाउ लेट्स कंसिडर दैट दिस इज आवर प्रोजेक्ट. ओके, तो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल हम क्रिएट करेंगे. यहाँ पे एक सिंपल जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करता हूँ मैं. ओके, अभी बेसिकली कॉल बैक क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. सो आई विल जस्ट यूज index.js फाइल. ओके, अभी जिनका CSS चालू है डोंट वरी गाइस, जस्ट कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाएगा. सो फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास हमें 2 या फिर 3 फंक्शनलिटीज करनी है. ओके, एज ऑलवेज आई विल जस्ट टेक अ मैथमेटिकल एग्जांपल विच इज़ वेरी सिंपल. सो जैसे मान लेते हैं कि हमें 3 ऑपरेशंस करने, जैसे कि ऐड, ओके, रिमूव, दैट इज ऐड, that is then subtraction. Okay, and then I just want to make a division. Okay, अभी हमारा लॉजिक क्या है कि जब ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ओके, whenever the add operation is going to be performed, what we want that कि ऐड ऑपरेशन होने के बाद उसका जो आउटपुट है वो डिवीजन को मिल जाए. जैसे ये 3 हमारे फंक्शन है. ओके, दीज आर द 3 फंक्शनलिटी. व्हाट वी वांट कि आपका एक पार्ट या फिर एक बार आपका ऐड ऑपरेशन हो गया, उसका आउटपुट हमें सब्सट्रैक्शन को देना है और उसका ही आउटपुट हमें डिवीजन को देना है. तो होगा क्या, यहाँ पे हम 2 इनपुट देंगे, लाइक वी जस्ट प्रोवाइड 2 इनपुट. ओके, 2 इनपुट हमारे यहाँ पे रहेंगे, 2 इनपुट. यहाँ पे एडिशन कैलकुलेट होगी. ओके, देयर विल बी द एडिशन ऑपरेशन. और एक बार आपका एडिशन ऑपरेशन यहाँ पे हो गया, ओके, द एडिशन ऑपरेशन विल बी देयर. इसका जो आउटपुट रहेगा वो सिंपली आपके नेक्स्ट को जाएगा. फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन का जो आउटपुट रहेगा वो डिवीजन को जाएगा और जो डिवीजन का आउटपुट होगा ये कैलकुलेशन करेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल रिजल्ट. ओके, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा. तो हमारा इनपुट ऐड से स्टार्ट होगा और आउटपुट कहाँ पे है, डिवीजन का रहेगा. ओके, नाउ द सीन इज दैट, नाउ द सिनेरियो इज दैट कि ओके, सो जस्ट होल्ड फॉर. ओके, नाउ द सिनेरियो इज दैट कि जैसे मान लेते हैं कि आपने ये 3 फंक्शनलिटी क्रिएट कर ली. तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूंगा. ओके, जस्ट आई विल क्रिएट अ फंक्शन लाइक से ऐड. नाउ अभी ये जो आपका ऐड फंक्शन है इसमें मैं एडिशन करने वाला हूँ. सो आई विल जस्ट से ऐड ओवर हियर. ओके, जो भी रहेगी ऐड कैलकुलेशन. ओके, आई विल जस्ट से ऐड कैलकुलेशन ओवर हियर. सो दिस इज गोइंग टू बी द ऐड कैलकुलेशन. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे ऐड कैलकुलेशन करूंगा मैं. अभी देखिए, एक बार एडिशन का हो गया, उसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन का फंक्शन क्रिएट करेंगे. जैसे कि मेरे पास रहेगा सब्सट्रैक्शन का फंक्शन. ओके, और यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा. सो आई विल जस्ट से सब्सट्रैक्शन और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का कैलकुलेशन रहेगा, राइट. उसके बाद रहेगा डिवीजन. ओके, एंड देन वी विल जस्ट मेक अ डिवीजन फंक्शनलिटी ओवर हियर. सो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरे पास एक डिवीजन है, दैट इज अ डिवीजन फंक्शनलिटी एंड देन वी विल जस्ट यूज अ डिव ओवर हियर. नाउ नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, जैसे हमारी डिपेंडेंसी क्या है कि एडिशन का जो रिजल्ट है वो सब्सट्रैक्शन को मिले, सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो डिवीजन को मिले. सो मैं ऐसा कहूँगा कि जो भी एडिशन रहेगा उसका रिजल्ट रिटर्न होना चाहिए. ओके, उसका रिजल्ट रिटर्न होना चाहिए बिकॉज हमें वो रिजल्ट सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करना है. सो आई विल जस्ट से फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज ऐड रिजल्ट. ओके, जस्ट आई विल से दिस इज ऐड रिजल्ट. तो ये जो ऐड का रिजल्ट रहेगा ये हम रिटर्न करेंगे एडिशन में. तो अभी इस फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, जैसे मैं कॉल करूंगा ऐड फंक्शन को और ये एडिशन करेगा. ओके, लेट्स कंसीडर दैट दिस इज अ ऐड फंक्शन कॉल, राइट. ये हमारा ऐड का कॉल है. तो जैसे मैंने रिटर्न किया है, बिकॉज मुझे क्या करना है, ऐड का रिजल्ट सब्सट्रैक्शन को पास करना है, तो ये रिजल्ट मुझे कहीं पे कलेक्ट करना पड़ेगा.
सो आई विल जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल लाइक से var, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक से add result. Just I will write add result over here. Okay, just I will try to add result. अभी मान लेते कि इस एडिशन के साथ मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे कि ये डेटा मुझे सबसेक्शन को देना है. आई जस्ट वॉन्ट टू पास दिस डेटा टू अ सबसेक्शन. सो हम कैसे करते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जस्ट आई विल से कॉल सबसेक्शन, और ये जो ऐड का रिजल्ट रहेगा मैं यहाँ पे पास कर दूंगा. सो आई विल जस्ट से ऐड रिजल्ट, राइट. आई विल जस्ट पास इट एज अ फंक्शन कॉल पैरामीटर, राइट. तो फंक्शन के कॉल में मैंने पैरामीटर पास कर दिया. अभी लाइन नंबर 7 पे हमें ये कलेक्ट करना पड़ेगा. सो आई विल जस्ट से ऐड रिजल्ट, हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा. और इसके साथ साथ अभी हम सबसेक्शन का कैलकुलेशन करेंगे, और इसका जो रिजल्ट है आई विल जस्ट से कि ये रिटर्न करेगा सबसेक्शन का रिजल्ट. ओके, इट विल क्रिएट अ सबसेक्शन रिजल्ट, इट विल क्रिएट अ सबसेक्शन रिजल्ट. नाउ अभी ये रिटर्न जो कर रहा है, हमें ये इसका जो सबसेक्शन का आउटपुट है वो डिवीजन को पास करना है. सो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल से var, और यहाँ पे रिटर्न का डेटा मैं कलेक्ट करूंगा. जस्ट आई विल से सब रिजल्ट इक्वल्स टू सबसेक्शन रिजल्ट. तो हमने क्या किया, पहले फंक्शन को कॉल किया, उसका रिजल्ट हमने उस यहाँ पे एक्युमुलेट किया, फिर हमने सबसेक्शन को ये रिजल्ट पास कर दिया. देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, सो जस्ट यू कैन अवॉइड इट. ओके, सो जस्ट एज्यूम कीजिए कि ये कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे रहा है, दैट्स इट. सो उसके बाद यहाँ पे हम सबसेक्शन का वर्क कर रहे हैं, और सबसेक्शन का रिजल्ट जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लाइन नंबर 18 पे कलेक्ट कर रहे हैं. ओके, फॉर द सेम डिवीजन वी वांट टू जस्ट वर्क एज अ डिवीजन. ओके, तो यहाँ पे मुझे डिवीजन यूज करूंगा मैं, डिवीजन रिजल्ट. जस्ट आई विल से डिवीजन रिजल्ट, एंड देन आई विल जस्ट यूज div ओवर हियर. उसी तरीके से, और ये जो सबसेक्शन का रिजल्ट रहेगा ये मैं यहाँ पे पास कर दूंगा. सो ऐड का रिजल्ट सबसेक्शन को पास किया, सबसेक्शन का रिजल्ट डिवीजन को पास किया. ओके, सबसेक्शन का रिजल्ट डिवीजन को पास किया, तो यहाँ पे भी मैं डिवीजन यूज करूंगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल कैलकुलेशन. तो ये मेरा लास्ट div का रिजल्ट रहेगा. सो आई विल जस्ट रिटर्न दैट div रिजल्ट, राइट. आई विल जस्ट रिटर्न द div रिजल्ट ओवर हियर. सो दीज आर द फंक्शन कॉल्स. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं. तो हमारा div का रिजल्ट यहाँ पे, एंड नाउ आई विल जस्ट यूज अ log टू प्रिंट. मैं क्या करूंगा, प्रिंट करने के लिए कंसोल लॉग का यूज करो. जस्ट आई विल से div रिजल्ट. ओके, और यहाँ पे कॉमा देके div रिजल्ट पास कर दूंगा. ओके, जस्ट आई विल पास div रिजल्ट लाइक दिस, दैट्स इट. ओके, आई विल जस्ट पास अ div रिजल्ट. तो आपने अगर एक चीज ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन का ऑपरेशन या फिर आउटपुट दूसरे फंक्शन को दे रहे हैं, दूसरे फंक्शन का आउटपुट तीसरे फंक्शन को दे रहे हैं. लेकिन इस सिनेरियो में हम ये लॉजिक बराबर है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज दैट वॉट एवर यू आर मेकिंग द फंक्शनैलिटी ये ग्लोबल हो रही है. फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट थिंग. उसके बाद अगर मान लेते कि एडिशन के और सबट्रैक्शन के बीच में मुझे अगर कुछ कैलकुलेशन करना है, तो मुझे इनके बीच में यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑपरेशन, एक्स्ट्रा ऑपरेशन. ओके, जैसे मुझे एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इट्स ऑपरेशन सो मुझे एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ओके, और फिर मुझे ये ऐड का रिजल्ट, मान लीजिए कि कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद, मतलब कुछ लाइक किसी वैल्यू के साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और फिर ये ऐड का रिजल्ट मुझे पास करना है. तो आप एक चीज देखो कि सारी की सारा फंक्शनलिटी ग्लोबल हो रही है, मतलब एक ग्लोबल फंक्शनलिटी जनरेट हो रही है. सो इसे अवॉइड करने के लिए हम कॉलबैक्स का यूज कर सकते हैं. कॉलबैक में क्या होता है, कॉलबैक में हम जितने भी ये वेरिएबल्स रहेंगे ये हम लोकली यूज करते हैं. लोकली मतलब फंक्शन के अंदर. जैसे ऐड ऑपरेशन होने के बाद रेदर देन रिटर्न वी कैन रन अ फंक्शन. हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को रन करेंगे. सो जैसे मान लेते हैं ये एक कॉल बैक नाम का फंक्शन है. ओके, और मैं इसे अंदर यहाँ पे रन करूंगा. ओके, जस्ट आई विल रन दिस फंक्शन. अभी मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे रन कर रहा हूँ. तो जब भी मैं फंक्शन रन करता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन रन किया था, तो उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी थी. उसी तरीके से अगर मैं ये फंक्शन रन कर रहा हूँ, ओके, तो ये फंक्शन हम रन टाइम क्रिएट करते हैं. सो व्हाट वी डू, रेदर देन रिटर्निंग दिस ऐड रिजल्ट, वी जस्ट क्रिएट अ फंक्शन विदाउट अ नेम इन अ फंक्शन कॉल ऑफ अनदर फंक्शन. एक दूसरे फंक्शन के कॉल में हम एक फंक्शन डेफिनेशन पास करते हैं इनसाइड द पैरामीटर. पैरामीटर के अंदर हम ये क्रिएट करते हैं. ओके, वी जस्ट क्रिएट इनसाइड द पैरामीटर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक फंक्शन. ओके, इसे हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं. तो अभी होगा क्या,
यहाँ पे मैंने ये फंक्शन डेफिनेशन पास कर दिया एज अ पैरामीटर, तो मैं उसे यहाँ पे कॉल करूँगा. सो आई विल जस्ट से कॉल बैक. तो इसे इन अ स्टैंडर्ड वर्ड वी से इट एज अ कॉल बैक. तो ये वही लॉजिक यूज़ करेगा. देखिए अभी यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ. सो ऑन लाइन नंबर 18 उसकी डेफिनेशन है. तो अगर लाइन नंबर 4 पे मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे उसका पैरामीटर है. तो लाइन नंबर 18 पे फंक्शन की कॉल के अंदर जो मैं दूसरा फंक्शन डेफिनेशन लिख रहा हूँ वो मैं सिंपली वेरिएबल उसके अंदर पास कर दूंगा. सो दिस इज गोइंग टू बी माई एड रिजल्ट. एंड नाउ आई कैन मेक द एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी इन दिस फंक्शन ओनली. अभी ये सारा स्कोप लोकल हो गया है. तो जावास्क्रिप्ट में लोकल स्कोप होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया. अभी हम एक्स्ट्रा ऑपरेशंस कर सकते हैं और ये जो सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट रहेगा ये मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ. राइट. सो दिस इज हाउ द कॉल बैक्स आर बीइंग क्रिएटेड. वी क्रिएट अ कॉल बैक इन दिस वे. सो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ कॉल बैक? तो नेसेसिटी इज दैट कि हमारा जो लॉजिक है वो लोकलाइज हो जाएगा. ओके वेरिएबल्स लोकलाइज हो जाएंगे. और सेकंड पार्ट इज दैट कि हम एडिशन को एक्सटेंड कर रहे हैं. वी आर एक्सटेंडिंग द फंक्शनैलिटीज. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक. ओके सो टेक्निकली वी कॉल इट एज अ कॉल बैक ओवर हियर. A very simple but very effective one. So callback का समझ में आ गया शालिनी? Yes. Callback क्या होता है ये समझ में आ गया? Yes sir. Okay. Now the question is that what is a callback hell? Okay. ये callback hell क्या होता है? Now there is a issue with callback. Okay. Callback यूज करना अच्छी बात है but callback का issue होता है. Callback का issue क्या होता है? चलिए इसे पेंट से समझते हैं. So basically होता क्या है? मान लेते हैं कि मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ. ओके और उस फंक्शन कॉल में हम एक देखिए फंक्शन कॉल में मैं कॉल बैक फंक्शन यूज कर रहा हूं. तो जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक कॉल बैक फंक्शन है तो इसके अंदर फिर से मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा. ओके फिर उसका भी कॉल बैक हो सकता है. मतलब एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, फिर यहाँ पे तीसरा कॉल बैक रहेगा, फिर उसके बाद चौथा कॉल बैक रहेगा, फिर उसके बाद पांचवा कॉल बैक रहेगा एंड सो ऑन. यू विल सी दैट कि एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक होता है. इससे इश्यू क्या जनरेट होता है? कोड मेंटेन और मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे कि नेस्टेड इफ एल्स होता है. नेस्टेड इफ एल्स यूज करना थोड़ा सा गलत चीज है. अगर आपको स्विच यू कैन जस्ट यूज अ स्विच, जैसे उसका अल्टरनेटिव होता है. नेस्टेड इफ एल्स नहीं यूज करना. तो कॉल बैक में क्या होता है? एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा एंड सो ऑन. अगर बहुत सारे कॉल बैक रहे तो यहाँ पे कोड मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है. एरर मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है एंड ड्यू टू दैट वी कॉल दैट इशू एज अ कॉल बैक हेल. सो जब हम एक के बाद दूसरा कॉल बैक कॉल करते हैं, मतलब एक कॉल बैक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, इट जस्ट लाइक अ इंसेप्शन मूवी अगर आपने देखी होगी तो एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा एंड सो ऑन. ओके सो इट क्रिएट्स अ हेल. इट क्रिएट्स अ हेल दैट इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक हेल. ओके वी कॉल इट एज अ कॉल बैक हेल. सो इसे कोडिंग में कैसे होता है या फिर कॉल बैक हेल टेक्निकली अभी सुनने में तो अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल में कैसे होता है? तो हम क्या करते हैं, जैसे ये सब्सट्रैक्शन है इसे भी हम रिटर्न कर रहे हैं. राइट. सो व्हाट वी डू, वी जस्ट से दैट कि ये जो फंक्शन कॉल रहेगा, ये देखिए हम यहाँ पे पहला पैरामीटर पास कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन को, लेकिन दूसरा पैरामीटर में कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा. लाइक आई विल क्रिएट अ फंक्शन विदाउट अ नेम. ओके एंड देन आई विल जस्ट पास अ कर्ली ब्रैकेट और फिर ये मैंने पास कर दिया कॉल बैक फंक्शन. देखिए एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक फंक्शन कॉल कर रहे हैं. राइट. नाउ ये जो सब्सट्रैक्शन रहेगी, अभी यहाँ पे हमने वो कॉल बैक कॉल किया, लाइन नंबर 22 पे ये डेफिनेशन है, तो इसे हमें यहाँ पे पैरामीटर में कॉल करना पड़ेगा. सो आई विल अगेन से कॉल बैक और इस फंक्शन को मैं रन करूंगा. आई विल जस्ट रन दिस फंक्शन लाइक दिस. ओके आई विल जस्ट से कॉल बैक और इसे मैं यहाँ पे पास कर दूंगा. नाउ एज वी आर जस्ट वर्किंग विद दिस कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर है इसे हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं लाइन नंबर 22 पे. राइट. वी कैन जस्ट कलेक्ट इट ऑन लाइन नंबर 22 एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक इन कॉल बैक. अभी दो कॉल बैक अच्छी बात है, लेकिन मान लेते हैं अभी ये डिवीजन भी उसके अंदर आ जाएगी. राइट. द डिवीजन ऑल्सो विल बी देयर. ओके डिवीजन भी हो सकती है. तो ये हम सब्सट्रैक्शन के अंदर जो कॉल बैक है उसमें क्या करेंगे, डिवीजन के फंक्शन को कॉल करेंगे. वी विल जस्ट कॉल दैट फंक्शन ओवर हियर. ओके we will just call that function over here. Now the next issue is that कि देखिए एक फंक्शन कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक कॉल किया. अभी दूसरे के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि डिवीजन की फंक्शनलिटी आगे चल के एक्सटेंड हो सकती है. तो यहाँ पे भी हम फिर से फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे विदाउट अ नेम, दैट इज अ कॉल बैक फंक्शन. ओके वी विल जस्ट राइट अ कॉल बैक फंक्शन. तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट पैरामीटर है मेरा सब रिजल्ट, लेकिन सेकंड पैरामीटर कॉल बैक रहेगा. सो द सेकंड पैरामीटर विल बी कॉल बैक ओवर हियर. And now I can just call that callback like this.
So this is called as a, this is how the callbacks run. अभी यहाँ पे मैंने वो फंक्शन कॉल किया लाइन नंबर 15 पे, लाइन नंबर 23 पे मैंने डिफाइन किया है, तो 15 पे कॉल किया तो उसका जो वैल्यू रहेगी वो हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे. सो आई विल जस्ट से दिस इज गोइंग टू बी द div result. ओके, तो देखिए सारा के सारा कोड लोकल आ गया अभी, एंड देन आई विल जस्ट से console.log ओवर हियर. सो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा. दिस इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक हेल. दिस इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक हेल. ओके, सो एक नॉर्मल कॉल बैक अच्छी बात होती है, बिकॉज वी यू द कॉल बैक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट जब आप मल्टीपल कॉल बैक्स और या फिर नेस्टेड कॉल बैक्स रन करते हैं, वी कॉल देम एज अ कॉल बैक हेल. ओके, सो थेरोटिकली एंड प्रैक्टिकली दीज आर द वे. सो अगर आपको किसी ने अगर इंटरव्यू में ये पूछते हो, ऐसे भी आपको मशीन टेस्ट होती है कि आपको डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करने को बोलते हैं, एंड दे जस्ट से नाउ एक्सप्लेन मी द कॉल बैक हेल. तो आपका एक्सप्लेनेशन भी ऐसा ही होना चाहिए. ओके, डोंट वरी. सो हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, इट हैपन्स. यस, गेटिंग द पॉइंट शालिनी, कंसेप्ट Yes, समझ sir. में आ गया? ओके फाइन. यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. यस, सो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वेलकम. यस, सपना, रक्षिता, प्रियंका मैम, ज्योति, भाग्यश्री. Yeah, so kindly ask the question, guys. Yeah, so okay, so you can just ask the question regarding HTML, CSS, JavaScript, React, MongoDB, Node.js, Express.js. Okay. Yes, any question? Kindly ask. सर इम्प्लिसिट टाइप कोएर्शन क्या है जावास्क्रिप्ट में? Implicit type, फिर से एक बार जरा रिपीट कीजिए. सर इम्प्लिसिट टाइप कोएर्शन. ओके, सो जस्ट 2 मिनट दीजिए सिर्फ, बिकॉज हमने लिया नहीं टॉपिक, आई थिंक सो, राइट? यस सर. सो ओके ओके फाइन. सो ऑलरेडी हमने वो टॉपिक लिया है. ओके, लेकिन टॉपिक का नाम में हमने वो ऑफिशियली नहीं लिया था. सो बेसिकली क्या होता है, सी इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक वेरिएबल है. आई विल जस्ट से वेरिएबल ऑफ ए इक्वल्स टू 1. ओके, like take an example, and then I will just say where, okay, then I will just use variable b equals to 2 over here. Let's take an example. अभी अगर मैंने वेरिएबल a प्लस वेरिएबल, अगर मैंने ऐसे लिखा लाइक से वेरिएबल c इक्वल्स टू वेरिएबल a प्लस वेरिएबल b, तो इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? यस, क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसे हम एक काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट को कॉल भी 3 सर. यस एग्जैक्टली, द आंसर इज गोइंग टू बी 3, राइट? तो इसे हम टेक्निकली रन भी करेंगे. ओके, सो आई विल जस्ट रन दिस वन. सो यहाँ पे मैं जस्ट HTML की फाइल क्रिएट करूँगा. सॉरी, आई विल जस्ट क्रिएट अ फाइल लाइक से index.html. Also we will just run the operation or application. So I will just call the script tag. Just I will remove the metas because हम ले नहीं रहे, तो मेटा को रिमूव कर देंगे. Then I will just use src, and that just I will call the JS file. Okay, जिन्हें पता नहीं, don't worry. Okay, fine. So now let's run the application with live server. I will also open a console.
So just I will refresh the page once again. Yeah, now if we just use just I will use a console log. So यहाँ पे मैं console log print करूँगा. I will just say console log. See, तो मुझे आउटपुट में क्या आना चाहिए? Obviously we are going to get 3 over here. But now what will happen that if I just use a single quote for 2? अभी मेरा आउटपुट क्या आएगा? Yes, anyone? What will be the output? So 1 and 2. It will be a it will 1, be 2. 1 2, right? That it will be a 1 2. So ये 1 2 क्यों आ रहा है? The reason is that जब भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है. इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. ओके, इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. नाउ whenever we are trying to make this addition, it is just creating a join functionality. ये एक join functionality कर रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है. ओके, तो ये एक नंबर है. इट इज अ नंबर. ओके, एंड देन इट इज अ नंबर स्ट्रिंग. ये एक नंबर की स्ट्रिंग है. सो आई विल जस्ट से दिस इज अ स्ट्रिंग. So now what is happening in JavaScript, whenever we are using plus, it is joining whenever we are using plus, and if there is a number with a number as a value and there is one more number which is like a string, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट ज्वाइन हो जाएगा. एंड अल्टरनेटिवली हमें मिलेगी यहाँ पे स्ट्रिंग. अल्टरनेटिवली हमें मिलेगी यहाँ पे स्ट्रिंग. ओके, वी विल जस्ट गेट अ स्ट्रिंग ओवर हियर. तो यहाँ पे ये जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे जॉइनिंग ऑपरेशन हो रहा है. सो नो दिस इज हैबिचुअल विथ नेचर. ऑब्वियसली ऐसा ही होना चाहिए. बट यही चीज अगर हमने सब्सट्रैक्शन के लिए की, लाइक इफ आई जस्ट यूज d इक्वल्स टू a माइनस b, नाउ टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ d. d का आंसर क्या रहेगा? d का आंसर क्या रहेगा? यस, a माइनस b क्या रहेगा? It is a string. Okay, consider this one. So what will be the output of d? Okay, it will be -1. Absolutely right. It will be a -1. Why it is -1? Because the JavaScript is not having any string functionality or string operation with minus values. प्लस के साथ है. क्यों? Because प्लस दो तरीके से काम करता है. स्ट्रिंग को ज्वाइन भी करता है और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करता है. तो यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रही है तो वो जॉइनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सब्सट्रैक्शन नहीं करेगा. दिस इज कॉल्ड एज अ इम्प्लिसिट कन्वर्जन. ओके, इसे हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं. मतलब क्या कि ये जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगी और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा. ओके, सब्सट्रैक्शन विल बी परफॉर्म एंड ओवर हियर द डेटा टाइप ऑफ डी विल बी अ नंबर. उसकी डेटा टाइप एक नंबर रहेगी. अगर चेक करना है तो हम टाइप ऑफ कीवर्ड यूज कर सकते हैं. राइट, वी जस्ट यूज अ टाइप ऑफ कीवर्ड एंड यू विल सी वी विल गेट अ नंबर. राइट, वी जस्ट गेट अ नंबर. सो जब भी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करेगी उसे हम इम्प्लिसिट कहेंगे. एंड नाउ इफ आई वांट दैट कि ये एडिशन ऑपरेशन भी होना चाहिए तो हमें यही चीजें एक्सप्लिसिटली करनी पड़ेगी. एक्सप्लिसिटली मतलब बाहर से, फोर्सफुली. सो फॉर दैट लाइक वी यूज अ कंस्ट्रक्टर एज अ नंबर. राइट, हम कन्वर्जन के लिए नंबर कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं. सो नाउ यू विल सी दैट अगर मैंने डिवीजन को एडिशन को अगर कॉल किया, दैट इज वेरिएबल सी, यू विल सी दैट इट विल प्रोवाइड आउटपुट एज 1 + 2 = 3. और अभी इसकी डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगी, दैट इज अ नंबर. दैट इज अ नंबर. सो जब हम फोर्सफुली या फिर बाहर से एलिमेंट को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स. जब जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, दे आर कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स. ओके, तो ये टॉपिक हमने लिया था बट हमने उसका ऑफिशियल नाम नहीं लिया था. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन. इम्प्लिसिट मतलब खुद जावास्क्रिप्ट करती है, एक्सप्लिसिट मतलब हम बाहर से फोर्स देते हैं. ओके, कन्वर्जन के लिए. यस सपना, टॉपिक क्लियर आउट? Yes, sir. ओके फाइन. यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे, यू विल गेट सम आर्टिकल्स. जैसे आप आर्टिकल वो पढ़ेंगे, ओके, ऑलरेडी हमने करीब करीब सारे टॉपिक लिए, बट होता है कभी कभी कि ऑफिशियल नेम हम लेते नहीं. ओके, इट हैपन्स फ्रॉम मी समटाइम. बट यस,
हमने कन्वर्जेंस और टाइप कास्टिंग देखी थी. अंडर द टाइप कास्टिंग वी हैव जस्ट सीन दिस लॉजिक्स. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सर पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस में थोड़ा कंफ्यूजन था. Okay, pass by value and pass by references. Okay, means value by data by value and data by references, right? यस सर. Okay, fine. So चलिए वो भी क्लियर कर लेते हैं. So okay, fine. Now just मैं इसे कमेंट कर दूंगा. Just I will make a multi-line comment. Yeah. Now basically जब जावास्क्रिप्ट की बात आती है, okay, जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के वेरिएबल्स रहते हैं. दो तरीके के वेरिएबल्स है जावास्क्रिप्ट में. ओके, सो वन टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर बाय वैल्यूज. ओके, सो वी कॉल देम एज अ प्रिमिटिव. ओके, वी कॉल देम एज अ प्रिमिटिव टाइप या फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोल सकते हैं आप. ओके, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. सेकंड इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. अभी ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे कि स्ट्रिंग है, राइट. सो इसमें लिस्ट कौन सी आती है मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा. सो जैसे कि ये प्रिमिटिव में क्या क्या आता है? जैसे कि स्ट्रिंग आती है, नंबर आता है, ओके, बुलियन वैल्यूज आती है. तो ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हुए. नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है? नॉन प्रिमिटिव में जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, राइट. वी आर हैविंग अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो जावास्क्रिप्ट का अरे और जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ये नॉन प्रिमिटिव में आता है. दे आर अंडर द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. नाउ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बाय वैल्यूज. ओके, दे आर बाय वैल्यूज. जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती है वो बाय वैल्यूज होती है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होती है दे आर बाय रेफरेंसेस. ओके, दे आर बाय रेफरेंसेस. तो अभी बाय वैल्यूज और बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा, लाइक से वेरिएबल, आई विल जस्ट से वेरिएबल a इक्वल्स टू 2. ओके, और यहाँ पे हम और एक वेरिएबल लिखेंगे, लाइक से b इक्वल्स टू 3. ओके, सॉरी, b इक्वल्स टू a. तो मैंने क्या किया? वेरिएबल a क्रिएट किया और b को a पास कर दिया. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, अगर मान लेते मैंने a को यहाँ पे अगर 5 कर दिया, और अगर मैंने कंसोल में अगर प्रिंट कर दिया a और b, तो मुझे एक बात बताइए, a की वैल्यू क्या रहेगी और b की वैल्यू क्या रहेगी? सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट ओवर हियर? क्या आउटपुट रहेगा? सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ a एंड b? So we are creating A will be 5 and B will be 2. A will be 5 and B will be 2, right? Yes, obviously answer is right. So A will be 5 and B will be 2. Now why this is happening? ये ऐसा क्यों होता है? तो इसे पेंट से समझते हैं. Okay, let's create a paint and let's understand this scenario. अभी क्या हो रहा है समझने की कोशिश कीजिए. जैसे कि आप दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट. यू आर क्रिएटिंग 2 वेरिएबल्स, और जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं वेरिएबल a में 2 पास कर रहा हूँ. जैसे ही मैं वेरिएबल a को वेरिएबल b असाइन करूँगा, ओके, दैट b ये जो 2 रहेगा, ओके, यहाँ पे जो आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो 2 दिख रहा है, ये यहाँ से कॉपी होगा एंड इट विल बी पास टू द b. ओके, तो ये b में आ जाएगा. अभी यहाँ पे a और b दोनों अलग अलग है. ओके, ये दोनों अलग अलग है बिकॉज यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो नंबर है. सो यहाँ पे क्या होता है, कॉपी और पेस्ट हो जाता है, तो दोनों अभी रिफ्लेक्शंस अलग अलग है. तो मैंने अगर इस a को अभी चेंज करने की कोशिश की, जैसे मैं यहाँ पे इसे चेंज करने की कोशिश करूंगा. सो फ्रॉम 2 जस्ट आई विल चेंज दिस टू 5. सो यू विल सी नो रिफ्लेक्शन विद a एंड b, राइट, बिकॉज ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. दे आर नॉट डिपेंडेंट. हम जब वैल्यू असाइन करते हैं तो हम कॉपी पेस्ट करके देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, लाइक 2 फोल्डर्स जैसे जैसे क्रिएट होते हैं हमारे ड्राइव में, हम 2 फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. इन द सेम वे द 2 वेरिएबल्स आर बीइंग क्रिएटेड. ओके, और दोनों की वैल्यू अलग अलग रहती है. दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल बाय वैल्यू. ओके, अ वेरिएबल बाय वैल्यू.
लेकिन यही चीज़ अगर हम एरे के साथ करें, ओके, या फिर ऑब्जेक्ट के साथ करें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करूँगा, सो आई विल जस्ट से लाइक से एरे इक्वल्स टू, सो आई विल जस्ट से दिस इज एरे 1, ओके, ये मेरा 1 एरे है। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करूँगा लाइक से 10, 20 और 30, ओके, मैंने 3 एरे क्रिएट कर दिए। अब अगर मैं एरे 2 क्रिएट कर रहा हूँ, इफ़ आई जस्ट ट्राई टू क्रिएट एरे 2, और मैंने अगर एरे 1 को अगर यहाँ पे पास कर दिया, ओके, एंड नाउ इफ आई ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ एरे 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एरे 1 जो है उसका इंडेक्स चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि मैं उसका इंडेक्स यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स था, मतलब 0th इंडेक्स, उसकी वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम 10 to 100। एंड नाउ माई क्वेश्चन इज अगेन दैट कि क्या होगा अगर मैंने ये दोनों एरे प्रिंट कर दिया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस एरे, एरे 1 और एरे 2 का आउटपुट क्या रहेगा अभी? Yes, what is the output of array 1 and array 2? Yes, क्या रहेगा? Any guesses? Sir, array 1 will be 100, 20 and 30 Yes, and array and array 2 will be 10, 20, 30. 2? Okay, so this is our expectation, right? ये हमारा expectation है, but in nature this doesn't happen. Okay, nature में ऐसा होता नहीं, मतलब कोड में, आपकी जावास्क्रिप्ट के कोड में ऐसा होगा नहीं। यू विल सी दैट कि आपका बी भी वही प्रिंट करेगा, मतलब सॉरी सेकंड एरे भी वही प्रिंट करेगा। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द रेफरेंस, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द रेफरेंस। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, तो जैसे कॉल बाय वैल्यू में तो सारी चीज़ें ओके चल रही है, लेकिन रेफरेंस में चीज़ें वैसी चलती नहीं है। तो कैसी चलती है, चलिए इसे समझते हैं। जैसे हमने एरे 1 क्रिएट कर दिया, ओके, और उसके अंदर हमने एक एरे क्रिएट किया। देखिए, वेरिएबल क्रिएट करना और उसे एरे असाइन करना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसे एक एरे असाइन किया। जैसे ही हम एरे असाइन करते हैं, ये एक दूसरी जगह पे क्रिएट हो जाता है और उस वेरिएबल में सिर्फ उस एरे का रेफरेंस रहेगा, उसका सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस रहेगा। तो जो भी आपको दिख रहा है वो सिर्फ रेफरेंस है, ओके। अभी मैंने क्या किया, तो रेफरेंस मतलब यहाँ पे मेमोरी एड्रेस आ रही है। मेमोरी एड्रेस कैसे, जैसे कि 0x111, ये मेमोरी एड्रेस है इस एरे की, ओके। ये जो सर्कल दिख रहा है इसकी ये मेमोरी है। तो वेरिएबल, ये जो एरे है हमारा एरे 1, इसमें डेटा नहीं होता है, इसमें रेफरेंस होता है सिर्फ। अभी अगर मैंने वेरिएबल 2 को क्रिएट किया, मतलब एरे 2 को क्रिएट किया, और मैंने अगर एरे 1 को एरे 2 के अंदर पास कर दिया, तो एरे 1 के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड द एरे 1? देयर इज अ मेमोरी लोकेशन। सो ये मेमोरी लोकेशन यहाँ से कॉपी हो जाएगी और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। नाउ द सेकेंड वेरिएबल इज ऑल्सो हैविंग द सेम मेमोरी रेफरेंस, तो ये जो एरे है ये इसे भी पॉइंट करेगा। अभी सिनेरियो क्या है, आप यहाँ से उसे चेंज करो या फिर यहाँ से चेंज करो, रिफ्लेक्शन एक ही जगह पे होगी। सो योर डेटा इज सेंट्रलाइज ओवर हियर एंड दिस इज द रेफरेंस इश्यूज, ओके। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं अगर एरे 1 चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो जाएगा यहाँ पे रेफरेंस में और यहाँ पे वो सर्कल चेंज होगा। जैसे ही सर्कल चेंज होगा, ऑब्वियसली आपके वेरिएबल 2 में भी वही रिफ्लेक्शन दिखेगा। क्यों? बिकॉज हमारा डेटा सेंट्रलाइज है। सो दैट्स वाई वी अवॉइड टू स्टोर द डेटा when we pass a reference from, or we just pass an array from one to another, we just try to avoid creating the reference issues. हम रेफरेंस इश्यूज को अवॉइड करते हैं। तो ये वो कैसे अवॉइड करते हैं, बाय यूजिंग द स्प्रेड ऑपरेटर्स। तो अगर अभी मैंने स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे क्रिएट किया, जो हमने रिएक्ट में देखा है, राइट। स्प्रेड ऑपरेटर अगर हमने यहाँ पे क्रिएट किया, यू विल सी नाउ वट एवर सपना वॉज स्पेसिफाइंग, योर आंसर विल बी एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज अभी यहाँ पे रेफरेंस एक नहीं है, ओके। देर आर नो सिंगल रेफरेंस और ईयर, यहाँ पे एक रेफरेंस नहीं। तो अभी कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सिनेरियो, इसे समझते हैं। तो यहाँ पे पहली वैल्यू तो रेफरेंस यहाँ पे आ गई, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ड्यू टू द स्प्रेड ऑपरेटर, यहाँ पे आपका जो पहला एरे था वो कॉपी पेस्ट होके उसका नया रेफरेंस मिल गया, ओके। एंड अ न्यूली क्रिएटेड एरे इज स्टक ओवर हियर। तो यहाँ पे अभी दोनों की दोनों, यहाँ पे रेफरेंस स्टोर हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग एरेज जनरेट होते हैं ड्यू टू द स्प्रेड ऑपरेटर्स। ये जो स्प्रेड ऑपरेटर ये रिक्रिएशन करता है। सो द रेफरेंस इशू इज बीन अवॉइडेड, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय कॉल बाय वैल्यू, द टाइप बाय वैल्यू, whenever we assign a first variable to second variable, and if we try to change first variable, the reflection of that variable data is not caused in second variable. Second variable में उसका reflection नहीं generate होता है। But if we create an array and if we pass that array to second variable,
the reference is been passed, and if we try to modify first array, the reflection get caused in second array. This is called as a type by reference या फिर value by references. Okay, so these are the data by values and these are the data by references. So primitives and non-primitives are the two way of creating a data with values and references. Okay, yes Sapna, getting the point? Yes, sir. Okay, yes, next question please. Yes, next question. So still we are having 10 minutes guys, so you can just ask the questions. Yeah. So XHR और fetch पे so work कैसे करें हम practice? ओके XHR और फेच पे आप प्रैक्टिस कैसे करें, राइट? दैट इज अ क्वेश्चन, या फिर वो वर्क कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है. सर मतलब उसको कमांड कैसे लें proper? ओके, सो XHR और फेच को कैसे हैंडल करें या फिर उसको कमांड कैसे दें. ओके, देखिए एज वी आर वर्किंग ऑन रिएक्ट, ओके, तो रिएक्ट में हम डायरेक्टली क्या यूज कर रहे हैं, एक्सियोस यूज कर रहे हैं. ओके, वी आर जस्ट यूजिंग एक्सियोस. बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट यू वांट टू वर्क विद XHR. सो बेसिकली क्या आप बता सकते हैं कि XHR और फेच क्यों यूज करते हैं हम? Yes. So what is the use of XHR and what is the use of fetch? Yes, anyone can elaborate, not only Shalini. So as she is asking the question, so it's supposed not to be that she is going to give the answer. Yes, anyone? Yes, Siddhant. So to fetch information from server, like Yes. interaction with server. Exactly, the answer is absolutely right. तो जब हमें सर्वर और क्लाइंट के बीच में, जैसे कि ये आपका सर्कल जो है ये सर्वर है, ओके, और यहाँ पे आपको ये जो स्क्वायर दिख रहा है दैट इज अ डेस्कटॉप इज योर क्लाइंट. तो अगर मुझे क्लाइंट और सर्वर में अगर कम्युनिकेशन करना है, इफ आई वांट दैट कि क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उसके दो टेक्निक्स हैं. एक टेक्निक होती है आप सिंक्रोनस लॉजिक यूज कर सकते हैं, सेकेंड टेक्निक होती है आप असिंक्रोनस यूज कर सकते हैं. सो जब असिंक्रोनस की बात आती है तो फेच काम करते हैं. ओके, जब भी असिंक्रोनस की बात आती है तो XHR या फिर हम फेच यूज कर सकते हैं. ओके, वी कैन जस्ट यूज अ फेच ओवर हियर. तो इन दोनों में से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं. अभी हर इन दोनों का इंप्लीमेंटेशन अगर आपको करना है, द फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. ओके, तो अगर आप XHR यूज कर रहे हैं तो आप फंक्शन के अंदर वो चीजें लिखोगे. यू विल जस्ट राइट द ऑल द थिंग्स इनसाइड दिस. सो ये जो कम्युनिकेशन होता है इसे हम टेक्निकली एजैक्स कहते हैं, राइट? तो XHR हो या फिर फेच हो, दोनों को हम एजैक्स लॉजिक ही कहते हैं. तो जब हम XHR क्रिएट करते हैं तो XHR या फिर ये जो फंक्शनलिटी होती है ये हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं, दोनों की दोनों. लेकिन जो XHR होते हैं उनके कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं. जैसे कि हम XHR को क्रिएट करते हैं, राइट? वी क्रिएट XHR, फिर हम क्या करते हैं, वी जस्ट ओपन अ चैनल, ओके, एंड वी जस्ट ओपन एंड सेंड द डेटा, राइट? फिर हम उस डेटा को हैंडल करते हैं. सो यहाँ पे जो आपका XHR रहेगा, इनसाइड द XHR द फंक्शनलिटीज आर बिट लेंदियर. ओके, तो ये फंक्शनलिटी थोड़ी लेंदियर होती है. लेकिन वही चीज़ अगर हम फेच के साथ करेंगे, इफ आई जस्ट यूज अ फेच, ओके, ओवर हियर, तो वो जो फेच का सिनेरियो रहेगा उसमें सिर्फ हम प्रॉमिस कॉल करेंगे, दैट इज वी विल जस्ट कॉल अ फेच. ओके, और रेस्ट पार्ट जो रहेगा वो हैंडलिंग कौन करेगा, हु विल हैंडल दैट, हमारे प्रोमिसेस करेगी वो चीज़ें हैंडल. तो अगर सारी चीज़ें ओके रही तो हम देन को कॉल करेंगे, ओके, और अगर कुछ भी इशू रहा तो हम कैच को कॉल करेंगे. सो राइटिंग अ XHR, writing a fetch API is good than writing the XHRs. Okay, so that is what I always suggest. अभी इसका यूजेज कैसे करना है, जब भी आपको सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना है तभी हम इसका यूज करते हैं. अगर मान लेते हैं आपको अगर सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना ही नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू मेक एनी कम्युनिकेशन विद सर्वर, दैट वी डोंट यूज XHR एंड फेच. ओके, तो अभी इसका यूज कैसे करना है, जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तब, मतलब मुझे सर्वर से डेटा लेना है और सर्वर पे डेटा देना है,
तो हम एक कॉमन फंक्शनैलिटीज क्रिएट करते हैं और उसी फंक्शनैलिटीज को हम कॉल करते हैं. ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट गाइस, जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट. ओके फाइन. सो तभी इनका यूज करना है जब आपको क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करनी है. तो सो बट व्हाट वी डू, rather than creating manual fetch or manual XHR, we use Axios library. Okay, हम Axios की लाइब्रेरी यूज करते हैं. तो Axios की लाइब्रेरी बैकएंड में कैसे किस पे डिपेंडेंट है, XHR पे डिपेंड है. ओके, ये भी याद रखिए. तो ये XHR पे काम करती है. ये प्रॉमिस बेस्ड लाइब्रेरी है लेकिन ये फेच यूज नहीं करती. इट जस्ट यूजेस द XHR. नाउ XHR एक पुरानी टेक्निक है और फेच एक नई टेक्निक है. तो इसमें कोई भी ऐसा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज नहीं होता है. सिर्फ XHR का कोड थोड़ा लेंदी होता है और फेच का कोड थोड़ा स्मॉल होता है. दैट्स इट. सो तभी यूज करना जब आप सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ओके, यस शालिनी, गेटिंग द पॉइंट. ये आपका क्वेश्चन था या फिर और आप इलेबरेट कर सकते हैं आपके क्वेश्चन को? ओके सर. Yes guys, next question please. Still we are having 7 minutes. Okay, you can just ask the question. हॅलो. Yes. हा सर, ते असिंक्रोनस वेने एकदा सांगा ना कसं करायचं. Okay, so asynchronous way. Okay, so let's take an example. So किसका एग्जांपल लेना है, XHR का लेना है या फिर फेच का लेना है? फेच. Okay, fine. So let's take a fetch example. Okay. Just I will make a comment over here. Yeah. Now let's take a fetch example. जैसे मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, हम एक API यूज करेंगे. Okay, we will just use a third party API. Like say we can just use, हमारे पास 2 APIs है तो हम उनमें से कोई भी एक यूज करेंगे, जैसे कि फेक प्रोडक्ट API. ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फेक प्रोडक्ट API अवेलेबल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक API एक स्टोर जैसा काम कर सकते हैं. सो नाउ यू विल सी दैट कि हमारे पास अलग अलग यहाँ पे APIs है. जैसे कि अगर मुझे प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे मुझे 20 प्रोडक्ट की लिस्ट मिलेगी. ओके, आई विल जस्ट गेट अ 20 प्रोडक्ट लिस्ट. तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा डेटा. राइट, दिस इज माई API डेटा. ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो इसे अगर मुझे कलेक्ट करना है तो मैं ये API URL यूज करूँगा. आई विल जस्ट यूज दिस API URL एंड व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल पास दिस API विद दिस फेच. ओके, तो मैं API जो है वो इस फेच के अंदर पास कर दूंगा. यू विल जस्ट पास इनसाइड दिस फेच ओवर हियर. ओके, एंड देन वी कैन सिंपली कॉल द देन फंक्शनैलिटी. वी कैन जस्ट सिंपली कॉल द देन लॉजिक, बिकॉज यहाँ पे जो भी हमारा डेटा आएगा वो हम देन में कैलकुलेट करेंगे. सो बेसिकली वी गेट अ रिस्पॉन्स ओवर हियर. राइट, हमें क्या मिलता है, वी गेट अ रिस्पॉन्स ओवर हियर. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल मेक अ console.log और उस रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट करूंगा. सो आई विल जस्ट प्रिंट अ रिस्पॉन्स ओवर हियर. ओके, जस्ट आई विल प्रिंट अ रिस्पॉन्स ओवर हियर. सो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल प्रिंट द रिस्पॉन्स और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे. सो आई विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन ओवर हियर. ओके, एजेक्स को हम कॉल करेंगे. जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा यू विल सी वन थिंग दैट वी विल गेट आउटपुट ओवर हियर. देखिए मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स का आउटपुट मिल रहा है. राइट, आई एम जस्ट गेटिंग द आउटपुट ओवर हियर. तो यहाँ पे मुझे जो डेटा मिल रहा है, जैसे लाइक आई एम गेटिंग स्टेटस एज ए 200. तो मुझे अगर इसका डेटा अगर कलेक्ट करना है, इफ आई वांट दैट कि मुझे इसका डेटा कलेक्ट करना है, तो हम API का डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, वी आर हैविंग वन मोर मेथड विच इज कॉल्ड एज ये जो रिस्पॉन्स होता है इसकी एक मेथड होती है. जैसे हमारा जो डेटा आ रहा है ये अगर प्लेन टेक्स्ट का डेटा है तो हम टेक्स्ट यूज करेंगे. ओके, वी विल जस्ट रन दिस टेक्स्ट, वी विल अगेन रन दिस टेक्स्ट ओवर हियर. और अभी हमें एक चीज़ पता है कि ये जो टेक्स्ट है ये एक प्रॉमिस है. तो अगर एक प्रॉमिस के अंदर अगर आप दूसरी प्रॉमिस लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे वो, जस्ट आई विल से रिटर्न दिस प्रॉमिस. और इसका जो डेटा रहेगा वो हम नेक्स्ट देन में कैच करेंगे. लाइक हम यहाँ पे प्रॉमिस की चेन क्रिएट कर रहे हैं. राइट, अभी जो नए हैं जावास्क्रिप्ट को या फिर जिनका स्टार्ट नहीं हुआ है, डोंट वरी गाइस, ये हम देखने वाले हैं. ओके, हमारे सेशंस में है ये. तो हमें यहाँ पे डेटा आएगा, वी विल जस्ट गेट अ डेटा एंड वी कैन जस्ट मेक अ console.log, वी कैन जस्ट मेक अ console.log टू प्रिंट दैट डेटा. हम क्या करेंगे, उस डेटा को प्रिंट करेंगे.
ओके वी कैन जस्ट प्रिंट दैट डेटा एंड यू विल सी दैट देखिए हमें ये पूरा की पूरा डेटा आ रहा है राइट, बट इट इज़ अ प्लेन टेक्स्ट डेटा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए कि डेटा जेसम फॉर्मेट में चाहिए। okay, data must be in JSON format, so rather than using plain text we will use a JSON over here। हम JSON नाम की मेथड यूज करेंगे and on save you will see that now we are getting a perfect output। see we are just getting the perfect output। अभी इस आउटपुट के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कम्युनिकेट विद द आउटपुट। ओके, तो अगर मुझे सिंपली अगर सिर्फ कैटेगरी चाहिए तो मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन देख सकता हूँ, लाइक मुझे इमेज प्रिंट करनी तो मैं इमेज भी प्रिंट कर सकता हूँ। वी कैन जस्ट डू एनीथिंग विद दिस एंड दिस इज हाउ अ API इज बीइंग कॉल्ड। अभी ये कैसे डिटेक्ट करना कि ये फेच API है या फिर XHR है? द आंसर इज प्रीटी सिंपल। आप नेटवर्क टैब में जाओगे, इनसाइड द नेटवर्क टैब जस्ट आई विल रिफ्रेश द पेज। सी यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, सी यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है वहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज अ फेच, राइट? द टाइप ऑफ API इज फेच। सी इट विल से अ टाइप ऑफ API इज फेच। अगर XHR होता तो वो XHR दिखाता। ओके, जैसे कि यहाँ पे फेच दिखा रहा है टाइप, तो अगर XHR होता तो XHR दिखाता वो आपको। ओके, सो XHR में और फेच में एक ही डिफरेंस है कि फेच प्रॉमिस बेस API है और XHR विदाउट प्रॉमिस बेस API है। ओके, यस, गॉट इट द पॉइंट। इसको और अगर मिनिमाइज करना है तो कोई बता सकते हैं मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? यस सपना, how we minimize this chain issue? Yes Siddhant? Try catch block. No, Async await. exactly, so हम async await use करेंगे। okay, don't say try catch block। okay, so we just use async await। तो हम यहाँ पे await का यूज करेंगे। await क्या करेगा? इस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी हमारा रिस्पॉन्स है अभी हम वो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक आई विल जस्ट यूज where, ये मेरा रिजल्ट रहेगा रिस्पॉन्स, एंड नाउ आई कैन जस्ट कॉल इट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन। ओके, तो अभी रिस्पॉन्स को अगर मुझे रन करना है तो हम वैसे ही कॉल करेंगे उसको, लाइक ईयर ओवर ईयर, लाइक आई विल जस्ट से अवेट। ओके, एंड देन वी विल जस्ट यूज वेर रिस्पॉन्स, सॉरी वेर दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल डेटा इक्वल्स टू, एंड वी विल जस्ट प्रिंट आवर लास्ट डेटा। सी आपका कोड बहुत ही कम हो गया, राइट? द कोड इज बीन रिड्यूस्ड ओवर ईयर। लेकिन जब हम अवेट यूज करते हैं, फंक्शन को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है, एंड फॉर दैट वी यूज अ कीवर्ड कॉल्ड एज अवेट, असिंक। हम असिंक यूज करते हैं, एंड नाउ यू विल सी दैट योर आउटपुट विल रन इन द सेम वे। सी हमें वही आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। सो आई विल जस्ट रन दिस वन, जस्ट आई विल सेव दिस। ओके, सो वी आर जस्ट कॉलिंग द फंक्शन, वी आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग इट, या सो इट विल जस्ट रन फाइन। So my code is taking some time। okay, yeah, now you will see once the response is being gathered, हम यहाँ पे वो प्रिंट कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे। लेकिन कभी कभी इश्यूज आते हैं तो उसे हैंडल करने के लिए जो अभी सिद्धांत ने कहा वो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ ट्राई कैच ब्लॉक। ओके, तो सारी चीज़ें हम ट्राई करेंगे और कोई भी इशू आएगा तो हम कैच में उसे फायर करेंगे। ओके, वी विल जस्ट फायर द थिंग इन द कैच। सो आई कैन जस्ट यूज console.log error। okay, in this way। So this is how the last part or the modern way of JavaScript looks like। अगर ये critical लग रहा है तो आप simply ये वाली टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। Either you can use this technique, okay, ये first वाली टेक्निक, या फिर आप simply ये modern टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। Okay, you can just use this second way। तो दोनों की दोनों सेम है। okay, they both are having the same output over here। तो आप दोनों में से कोई भी एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, and which I suggest is this new technique। Yes, Neil ma'am, getting the point? Doubt it's clear? Yes, sir. Okay, fine. So yes, last question. Already we have winded with the time, but you can just ask the last question. Yes, anyone? A last question, and then we will just close this session. जो भी in the rest. Sir. Yes. वेब पेज आपण बनवताना विड्थ हाईट देतो तेव्हा त्याचे युनिट पिक्सल पर्सेंटेज VH म्हणजे कसं ठरवायचं सर हे? Okay, गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट सपोज टू बी यूज्ड। ओके, सो अगर आपको आप अगर डायमेंशन की बात कर रही है, ओके, जस्ट यू आर सेइंग दैट रिगार्डिंग द डायमेंशंस। सो जैसे मान लेते कि हमारे पास यहाँ पे एक H1 टैग है या फिर div है, और मुझे क्या करना है, उसको हाइट और विड्थ सेट करनी है। लाइक आई वांट टू सेट इट हाइट एंड विड्थ।
सो अगर मैंने यहाँ पे हाइट और विड्थ अगर यूज़ की, सो कौन सा यूज़ करना चाहिए, विच यूनिट सपोज टू बी यूज्ड। सो कोई बता सकता है कौन सा यूनिट यूज़ करना चाहिए? यस, कैन एनीबडी टेल? VH और VW. Exactly, the answer is absolutely right. So I think so Rakshita has given this answer. Okay, so the answer is absolutely right. हम क्या यूज़ करेंगे? We will use, जैसे कि यहाँ पे हम 100 या फिर कुछ भी वैल्यू अगर आपको करनी है, अगर आपको हाइट के एसोसिएटेड करना है तो हम VH यूज़ करेंगे. That is a vertical viewport. Okay, that is viewport height. That is a viewport height. So what is this VH stands for? It stands for viewport height. ओके और अगर वही चीज़ अगर मुझे विड्थ के साथ करनी है तो हम VW यूज़ करेंगे. दैट इज़ अ व्यू पोर्ट विड्थ. वी यूज़ व्यू पोर्ट विड्थ. सो नाउ व्हाट इज दिस व्यू पोर्ट? व्यू पोर्ट मतलब आपको जो यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है इसे व्यू पोर्ट कहते हैं. ये जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डायमेंशन दिख रही है. देखिए मैं कम ज़्यादा करूँगा तो आपको राइट एक्सट्रीमली राइट कॉर्नर में डायमेंशन दिखेगी. सो जो स्क्रीन आपको दिख रही है कम या ज़्यादा होती हुई, वो वाइट स्क्रीन, वो आपका व्यू पोर्ट है. तो ये व्यू पोर्ट के हिसाब से UI चेंज होना जाना चाहिए. सो मैक्सिमम व्यू पोर्ट होता है 100. ओके, आप उसे बढ़ा भी सकते हैं. जैसे मुझे पेज की डबल साइज चाहिए व्यू पोर्ट के, सो आई कैन जस्ट यूज 20 व्यू पोर्ट. ओके, सो rather than using percentage, rather than using pixel, I will suggest each and everyone to use VW for height, for width, and VH for height. That is viewport height and viewport width. Okay, yes, is this idea is being clear regarding the part that which unit supposed to be used? हाँ, लेकिन अगर आप ये दोनों छोड़ के अगर कुछ भी कर रहे हैं then I will suggest you to use RAM. Okay, अगर मान लेते कि आप अगर यहाँ पे पैडिंग भी यूज़ कर रहे हैं then I will suggest you to use RAM, because हमें पता है कि 1 RAM क्या होता है? 1 RAM is equals to 16 pixel, right? एग्जैक्टली. वाई दिस इज 16 पिक्सल? बिकॉज आपका जो रूट एलिमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल का होता है, उसका जो फॉन्ट साइज है. ओके, और इफ यू वांट अ डिपेंडेंसी फंक्शनलिटी, दैट इज अ डिपेंडेंट लॉजिक, देन यू कैन जस्ट यूज अ EM. सो आइदर यू कैन यूज EM और आइदर यू कैन यूज RAM. आई विल सजेस्ट यू टू यूज एनी वन. ओके, यू कैन जस्ट यूज इट, बट रूट जो होता है मतलब RAM जो होता है वो रूट के एसोसिएटेड होता है, तो आपके इश्यूज कम होते हैं थोड़े से कोडिंग में. ओके, बट यू कैन जस्ट यूज इट. आई थिंक सो CSS में पिछले महीने में कुछ और अपडेट्स आए रिगार्डिंग द यूनिट्स. ओके, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. सो देर इज, इफ यू वांट टू लर्न CSS in a very clear manner, then there is a Kevin Paul. Okay, I think so it's Kevin. Okay, so अगर आपने YouTube पे अगर सर्च किया, गूगल पे अगर आपने सर्च किया Kevin Powell, right? CSS YouTube. If I just search Kevin Powell, ये इसके जो वीडियोस है वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑफ CSS, सबसे बढ़िया और सबसे इफेक्टिव वीडियोस है, बिलीव मी. इससे सिंपलेस्ट वे में कोई सिखाता नहीं है. ओके, CSS, और सबसे हार्ड है, मतलब सबसे हार्ड चीज़ भी बहुत ही सिंपल वे में ये सिखाता है. सो आई विल सजेस्ट यू, जिनको CSS में आगे चल के वर्कआउट करना है, यू कैन जस्ट फॉलो हिम. ओके, सो मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन जस्ट फॉलो इट. ओके, गुड नॉलेज ऑलवेज टू बी शेयर्ड, राइट? सो आप उसे फॉलो कर सकते हैं. फॉलो नहीं भी करना है तो भी मत कीजिए, बट वीडियोस देखिए. ओके, यू कैन जस्ट सर्च हिम एंड यू कैन जस्ट गो विद द वीडियोस. उसमें आपके यूनिट्स के वीडियोस मिलेंगे, यूनिट्स कौन से होते हैं. उसके बाद एनिमेशंस के वीडियोस मिलेंगे. ओके, और कुछ टेक्स्ट के भी वीडियोस मिलेंगे, रिस्पॉन्सिव के वीडियोस मिलेंगे. तो जितने भी लेटेस्ट ट्रेंड आते हैं मार्केट में CSS के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे CSS के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी. यू विल जस्ट गेट ऑल द स्टफ. ओके, yes, so this was what for today's session, and yeah, we have just winded with the time for the mentorship session. So I hope so कि जिनके doubts थे वो clear हो गए. अभी जिनको doubts है वो next session में starting के 15 मिनट में पूछ सकते. You can just ask the question, don't worry, we are available over there also. You can just ask them freely. Okay, yes, so now let's see in your next session. Okay, so अभी जिनके sessions specific time पे है, so we will just see you tomorrow. Weekend sessions or Monday or Tuesday sessions. Okay guys, so we will just see you on that session. So once again, we are very thankful for just working with going with this mentorship session. देखिए ये हमारा पहला सेशन था. अभी ऐसे ही सेशन हर थर्सडे को आपके रहेंगे. आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दिस सेशंस आर बेनिफिट फॉर द स्टूडेंट हु आर हैविंग द इश्यूज, डाउट जिनको है उनके लिए ये सेशंस है.
तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं. ओके, डोंट वरी. Yeah, so once again, thank you so much for joining today's session. See you with your corresponding batches in given period of time and day schedule. So till then, be happy, be safe.